کر چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن بھی میدان میں آ گئی۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پی ڈی ایم کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی 4 صدا میں اے این پی رہنماؤں سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیر بخاری کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم توڑنے کی بنیاد تو لیگی نائب صدر نے رکھی۔ فضل الرحمان نے شوکاز نوٹس جاری کر کے پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ پی ڈی ایم میں تمام جماعتیں مساوی بنیاد پر تھیں۔ کوئی لیڈر یہ کیوں سمجھتا رہا کہ ہم اس کے ماتحت ہیں؟ کو توڑنے کی بنیاد تو سینئر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے انہوں نے رکھی کہ انہوں نے شوکاز نوٹسز دیے 2 جماعتوں کو۔ ہم اس الائنس میں بشمول اے این پی اور دیگر 8 جماعتیں برابری کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کسی کا ماتحت نہیں، نہ میری قیادت نہ میری جماعت کسی کے ماتحت ہے، نہ اے این پی کی قیادت اور جماعت کسی کی ماتحت ہے۔ شو کاز نوٹسز تو ماتحتوں کے دیے جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ یہ 10 جماعتوں کا مجموعہ تھا، ایک سیاسی اتحاد تھا موجودہ حکمرانوں کے خلاف۔ آبجیکٹ ہمارا ایک ہی تھا کہ اس نائل حکومت سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار کا کہنا ہے کہ شوکاز کے معاملے پر اے این پی نے جو بہتر سمجھا کیا۔ کوئی سیاسی جماعت کسی دوسری پارٹی کو نوٹس جاری نہیں کر سکتی۔ اے این پی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ شوکاز نوٹس جو بھیجا، یعنی ان کو کس چیز کی جلتی تھی، کیوں ایسا کیا گیا، یہ تو افسوسناک ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے یعنی جو فیصلہ کیا، اپنے 100 سالہ تاریخ رکھتے ہوئے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ یعنی اپوزیشن کی بنیاد پہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ طریقہ کہ کسی پارٹی کو تم اس کی تضحیک کرو یا پبلک کو یہ میسج دو کہ یہ جمہوریت میں جمہوری جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے یا انہوں نے وائلیشن کر دیا اور اس کا ایک ایسا ہوا کھڑا کرنا، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اپوزیشن اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ مزید واضح ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پی ڈی ایم کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی 4 صدا میں اے این پی رہنماؤں سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پی ڈی ایم کے خلاف مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب نے۔ سر، پہلے تو آپ کو میں ویلکم کروں گی اور جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ اس وقت سر اپوزیشن ہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، خاص کر اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کی، تو انہوں نے پی ڈی ایم کے اگینسٹ ہی طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ کیا کہیے گا، اپوزیشن کے اس ایشو سے حکومت کا کام آسان نہیں ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر نظریاتی اور غیر تھا اور پہلے دن سے یہ سیاسی جنازہ تھا۔ بس اب یہ صرف ہوا ہے کہ جنازے کو دکھانے کا اعلان ہو گیا ہے، بلکہ جنازہ دکھانے کے بعد اب تو تعزیت بنتی ہے سب کے ساتھ، اور خاص طور پہ مولانا اور نون لیگ کے ساتھ۔ اینڈ آف دی ڈے یہی ہونا تھا کہ یہ اتحاد جو صرف اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ اپنے لوٹ مار اور کرپشن بچانی اور خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کرنا، رہنا رو لینا ہے۔ ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے، اور میں پیپلز پارٹی کا چونکہ حصہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس طرح زرداری صاحب، وہ کہتا ہے نا، محمد جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی سے آگے والی کوئی چیز چاہیے۔ بھائی اندازہ کریں کہ ان کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے، وہ کیوں استعفے دیں گے، وہ کیوں ان کی، اور خاص طور پہ وہ پارٹی جو خود ہمیشہ ڈیلوں کے ذریعے اقتدار میں آئی، جو ہمیشہ جی ایچ کی نرسری میں پلی بڑی، ضیاء الحق نے ان کی پرورش کی، غلام جیلانی نے ان کو گملے میں کاشت کیا، اور آج یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح نظریاتی بنے ہوئے ہیں جیسے یہ پتہ نہیں پہلے دن سے ہی۔ تو اس لیے ان کا ایڈ یہی ہونا تھا، اور اب آئندہ دیکھیں گے، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ابھی صرف فکرے بازی ہو رہی ہے، اور 2 پارٹیاں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور اے این پی نکلی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں تک یہ کہہ رہے تھے نا ہمارے خلاف لانگ مارچ کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کریں گی، ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کریں گی، اور میٹنگ کے دوران جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے، پلاننگ اور سازشیں کرتے رہے، ابھی دیکھیے پچھلے دنوں کیا ہوا۔ پہلے تو یہ مریم بی بی کہہ رہی تھی آر پار کر دیں گے، سیدھے منہ پہ ماریں گے، دم دم مست کلندر ہوگا، دسمبر میں نہیں ہوں گے، جنوری میں نہیں ہوں گے۔
अभी क्या हो रहा है, खुद बिलावल साहब को कह रही है मरीम बीबी की ये सिलेक्ट होने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट होना मेरे खून में नहीं है, ये तो राइवल का खानदान है। और ये तरह तरह अभी बल्कि पिछले दिनों तो यही तक भी कह दिया कि हमें पता है कि आप किस किस को जाके मिलते थे और डीले मांग रहे थे। सो ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। ये अपने सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद नजर ये है कि ये जो पाकिस्तान की आवाम में जो भेड़ बकरियां हैं, 70 साल यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रही, यहाँ पर यहाँ अमरीत रही है, ये पार्टियां रही हैं। 2-2.5 साल पहले तक ये पार्टियां एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरा कहती रही, पेट फाड़ देंगे, अली बाबा 40 चोर, मोदी का जो यार है। आज ये यकायक एक दूसरे को कैसे ये हाथ, तो इसलिए इस हाथ का एंड यही होना था। हमें खुशी इस बात की होती, लेकिन जो अपोजिशन होती है ना किसी भी कंट्री अच्छा के अंदर, शौकत बस्तर साहब, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की से आपकी भी एक वाबस्तगी रही है, सियासी मिजाज को भी उनके आप बड़ा करीब से समझते हैं, बिलावल भुट्टो की सियासत को अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पीडीएम की मौत के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नया रुख इख्तियार करेगी, क्या स्टांस होगा, कोई नया अलायंस बनते हुए देख रहे हैं आप? कितने पीपल कोई नया अलायंस नहीं बनेगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये एक दूसरे के खिलाफ सतारा होंगे, एक दूसरे के खिलाफ। अब अभी देखे ना, अभी आपने, मैं सुन रहा था, आपने एएनपी और पीपल्स पार्टी वालों की मीटिंग सुनाई है, और जिस तरह जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये हम कोई इनके मतहत हैं या पार्टियां अब्जॉर्ब हो गई हैं, हमें ये नोटिस भेज रहे हैं, तो सो हमें बिल्कुल इस बात का यकीन है कि ये बाकी जो भानुमती का कुंबा इकट्ठा हुआ है, आने वाले दिनों में ये भी इकट्ठे नहीं रहेंगे। कोई नया अलायंस नहीं बनेगा, और जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने वाली हैं, उनकी बातें चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है कि नियाजी टोले में इंतशार बता रहा है कि उनका चल चलाव है। पीटीआई में दरारें पड़ी तो नून लीग ने कंधा देकर हुकूमत को बचा लिया। मुल्क की तबाही करने वाली हुकूमत की सहूलतकारों को कौम पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान लूट मार का सारा माल अकेले हड़प करना चाहते हैं। तो आपको अपडेट करें इससे मुतालिक कि ये कुछ मौक़िफ़ जो कि उनका सामने आ रहा है, और डेफिनेटली पीडीएम जो कि अपनी ही मौत आप मर चुकी है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है हसन मुर्तज़ा, जिनकी जानिब से हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि नियाजी टोले में इंतशार पैदा हो चुका है। तो जहाँ हुकूमत तनकीद कर रही है, वहाँ पर अपोजिशन रहनुमा भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हुकूमत पर तनकीद करने का। और पीडीएम टूटने के असरात कराची के ज़िमनी इंतखाब पर भी आने लगे। NA 249 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार दस्तबरदार ना करके अच्छा नहीं किया। अब हमारा मुकाबला PTI के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी होगा। पीपल्स पार्टी को पीडीएम असूलों की पासदारी करनी चाहिए थी। वो 3 साल तक ना हल्के में नज़र आए, ना कोई खिदमत करी है। पानी की बातें करते थे, ना पानी दिया है। सड़कों की बातें करते थे, सड़कें नहीं बनाई, और कोई काम नहीं किया। अलबत्ता आजकल पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने दोनों ने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन मेरे ख्याल से हल्के के लोग यही बोलते हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है बुरी, और फैसल वाडा साहब की और इनके MPA की जो परफॉर्मेंस है बुरी, इसकी वजह से मेरे ख्याल से उस हल्के के लोग जो है ना PTI को वोट देंगे, ना TLP को वोट देंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को वोट देंगे, और PDM को वोट देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 12 जबकि 18 आज़ाद उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा हिरा ज़की से। हिरा ज़की, मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, कराची में ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त फॉर्म 33 जारी कर दिया गया है। ज़िमनी इलेक्शन में 12 सियासी जमातों के साथ 18 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सियासी जमातों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कादिर खान मंदोखैल, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, MGM के हाफिज मुरसलीन, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी समेत दीगर जमातों में पाकिस्तान फलाह पार्टी, पाकिस्तान राय हक पार्टी, पाकिस्तान ज़मीन और तहरीक लब्बैक शामिल है। इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन में 2 खवातीन मैदान में हैं। जुनैरा रहमान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। तहरीक इंसाफ की लैला परवीन है जो कवरिंग उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। जी शुक्रिया डिटेल्स के लिए हिरा सकी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मरदमशुमारी पर चारों सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरदमशुमारी से मुताल्लिक फ़ैसले आइंदा CCI इजलास में होंगे। हमने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की सिफारिश की है, जिसे NCOC ने मुस्तरद कर दिया। मुराद अली शाह का मज़ीद कहना था कि शायद जहांगीर तरीन को अभी भी हुकूमत से उम्मीद है। यकीन है इमरान खान जल्द जहांगीर तरीन की तमाम उम्मीदें तोड़ देंगे। कानून के मुताबिक सेंसस जो लेटेस्ट है ना, उसके तहत बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होने। इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है वो 1998 का है। अब आप आ जाए 2017 के सेंसस में, उस सेंसस पे चारों सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा। और इन शदीद तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पार्लियामेंट ने 2017 में पार्लियामेंट के अंदर एक आया था कि जी 5% इनको रीवेरीफाई करना है आपने। अनफॉर्चुनेटली वही 2.5 साल गुजरने के बाद कुछ भी नहीं किया गया। ये सारी बातें कल हुई हैं और मैंने तो ये कहा है कि इस वक्त आप ऐलान करें कि हम नए सेंसस कराएंगे। जहांगीर तरीन साहब का मैंने कुछ स्टेटमेंट देखा है, वो कुछ कह रहे हैं, अभी तक उन्हें शायद उम्मीद कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, फिर देखेंगे क्या होता है। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने 12 अप्रैल को स्कूल और कॉलेजेस खोलने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त नुमाइंदा जी न्यूज़ हैदर शराजी डी चौक से हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हैदर शराजी, अपडेट कीजिएगा। हैदर शराजी, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है एहतजाज की? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डी चौक पर इस वक्त आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के नुमाइंदे एहतजाज कर रहे हैं। इनका यह मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान में जो तालीम के हवाले से NCOC की जानिब से सूबों के साथ मिलकर ये फैसला किया गया कि तालीमी अदारे बंद किए जा रहे हैं, तो इस फैसले को वापस लिया जाए। ये समझते हैं कि हुकूमत के इस फैसले की वजह से बच्चों की तालीम के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन्हें तालीम से दूर किया जा रहा है। लिहाजा 50% बच्चों की हाज़िरी यकीनी बनाते हुए स्कूल खोले जाएँ। दूसरा, इन्होंने ये बताया है कि अगर इनके तमाम मुतालबात माने ना गए तो 12 अप्रैल के बाद ये स्कूल खुद खोल देंगे। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि मुल्क भर में जितने भी इनके तालीमी अदारों के खोले जाने पर एहतजाज किए जा रहे थे, उसमें जितने अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें फ़ौरन रहा किया जाए। अब इस वक्त इंतज़ामिया के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि तालीमी सिलसिला खोला जाए, तो स्कूल खोले जाएँ तो तालीमी सिलसिला दोबारा बहाल हो। तो इस्लामाबाद में कमिश्नर की जानिब से तमाम ओहदेदारों को भेजा गया है। इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात के बाद ही कुछ अगला लायामल तय किया जाएगा। लेकिन 12 अप्रैल को कराची में इन्होंने बड़े धरने का और एहतजाज का ऐलान भी किया है। जी, तालीमी इदारे बंद करने के फैसले के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे हैदर शराजी, शुक्रिया डिटेल्स के लिए हैदर। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अफगान अमल पर इत्मीनान का इजहार किया है। कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अफगान अमल पर इत्मीनान का इजहार किया है। ब्यूरो चीफ मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मतीन हैदर, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें फौज के पेशा वराना अमूर पर खास तौर पर इंटरनल और सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उनका खास तौर पर जायजा लिया गया। इस वक्त अफगानिस्तान का अमन और मुफाहमती अमल जो इस वक्त खित्ते की सिक्योरिटी में सबसे बड़ा चैलेंज है, इस अफगानिस्तान के अमन और मुफाहमती अमल का भी जायजा लिया गया और इसमें अब तक जितनी प्रोग्रेस हुई है इसके ऊपर आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और इस तवक्को का इजहार किया कि अफगानिस्तान का अमन और मुफाहमती अमल पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों के बायस आगे बढ़ेगा। मशरकी सरहदों मगरबी सरहदों पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसका भी मुफस्सल तौर पर जायजा लिया गया। जी, कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मतीन हैदर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सार्क समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। पाकिस्तान रवा बरस सार्क सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रवां साल दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान सार्क सरबराही इजलास 2021 की मेजबानी करेगा। भारत नरेंद्र मोदी के दौरा पाकिस्तान में मुलाकातों और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के शेड्यूल से मुतालिक सिफारती रवाबित का आगाज अगले माह से करेगा। इससे कबल सार्क समिट का इनेकाद 2014 में नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में हुआ था। सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने सार्क इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी और पाकिस्तान में सार्क समिट मुलतवी कर दी गई थी। गुज़िश्ता माह तर्जुमान दफ्तर खारजा वाज़ेह कर चुके कि पाकिस्तान रवा साल इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। अफगान पार्लियामान के सरबराहान ने स्पीकर असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता किया है। इस मौके पर स्पीकर असद कैसर का दौरा मुलतवी होने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराहान अफगान पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द का जहाज सिक्योरिटी खदशात के बाइस नहीं उतर सका। अफगान चेयरमैन सेनेट फजल हादी मुस्लिम यार और स्पीकर विलोसी जिरगा मीर रहमान रहमानी ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द का जहाज सिक्योरिटी खदशात के बाइस नहीं उतर सका। स्पीकर विलोसी जिरगा ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द की सिक्योरिटी हर चीज पर मुकद्दम है और उम्मीद है बहुत जल्द पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द काबुल के दौरे पर आएगा। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर जल्द अफगानिस्तान आऊंगा। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के दौरे काबुल में लैंड न करने के वाक़े की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ ने पता लगा ली। ज़राए के मुताबिक तैयारा काबुल एयरपोर्ट की हुदूद में लैंडिंग वे में आ चुका था। लैंडिंग की तैयारी के दौरान मार्टर गोले ने रनवे को हिट किया। मार्टर गोला लगने के बाद तैयारे को फिजा में दोबारा बुलंद करना पड़ा। 15 मिनट बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई मगर रनवे क्लियर नहीं था। तैयारा उसके बाद 1.5 घंटे तक अफगानिस्तान की फजा में चक्कर लगाता रहा। 1.5 घंटे के बाद भी तैयारे को लैंडिंग की इजाजत से इनकार करते हुए हुक्काम ने वापस जाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से माजी के कर्जों की वजह से मज़ीद कर्जे बढ़े। इस्लामाबाद में फराश टाउन अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। कर्जों के लिए बैंक भी तैयार है और स्कीमें भी लॉन्च हो रही हैं। गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे फराहम किए। FWO का कहना है कि लोगों के घर 2 साल में मुकम्मल होंगे। मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते कर्जे देने हैं ताकि एक गरीब आदमी अपना घर बना सके, अपने घर में रह सके। तो वो जो सारी कोशिशें थी वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं लॉन्च के लिए। और ये जो आज फराश टाउन की आज जो स्कीम है ये भी अब इंशाल्लाह अब 2 साल कहते हैं, FWO भी मुझे कह रही है 2 साल होंगे। तो 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे। घर बने हुए मिलेंगे यानी कि उनको फ्लैट्स मिलेंगे। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शहर में तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में तजावुजात के खिलाफ से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची की तजावुजात से मुताल्लिक रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, ये क्या रिपोर्ट है, हर जगह लिखा है रिपोर्ट का इंतजार है। चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसे अफसर को फारिग करें। सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुताल्लिक समाअत। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे से पूछा, आपके पास तजुर्बा है इस काम का? खानेवाल में रेलवे का एक काम मिला था, वो 8 साल से ज़ेरे इल्तवा है। वज़ीर आला की रिपोर्ट कहती है आपको कुछ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह में मंसूबा मुकम्मल करके रेलवे के हवाले करने का हुक्म दे दिया। शहर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार पर DG SBCA अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, SBCA बिल्डरों का एजेंट बन गया है। DG SBCA से सवाल किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं? कल कोई चीफ मिनिस्टर हाउस का इजाजतनामा दिखा देगा तो क्या आप बनाने देंगे? जो इमारत गैर कानूनी है उसे गिरा दें। हिल पार्क मुतासरीन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि 25 साल से हमारे घर बने हुए हैं और नक्शे सिंध हुकूमत ने पास किए हैं। अदालत ने किडनी हिल पार्क के मुतासरीन को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में YMC ग्राउंड से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश कर दी गई। आरिफ वाला में खुशी गम में बदल गई। मेहंदी की तकरीब पर थाना सिटी पुलिस का छापा दुल्हे के वालिद की जान ले गया। भट्टी नंबर 2 में दुल्हा शाबान के घर मेहंदी की तकरीब जारी थी कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और साउंड एक्ट को जवाज बनाकर पुलिस पहुंच गई। 3 अफसाना और दुल्हा समेत 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अहल के खाना के मुताबिक पुलिस दुल्हे पर तशद्दुद करते हुए मोबाइल में डाल कर ले गई, जबकि दुल्हे का बीमार बाप मंजूर अहमद बेटे पर तशद्दुद होते देख ना सका और उसे दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने दुल्हे को फौरी तौर पर रिहा कर दिया। खबरें और भी हैं, अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए।